بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ تبدیلی آ گئی، صارفین ہی نہیں دکاندار بھی چینی کے لیے لائن میں لگ گئے۔ اکبری منڈی میں چینی کی محدود سپلائی پر دکانداروں میں کھینچا تانی جاری رہی۔ گڑھی شاہو، گلبرگ، گلشن راوی، شمالی لاہور کے علاقوں میں چینی کی قلت برقرار ہے۔ صارفین کو ڈھونڈنے سے بھی چینی نہ ملی۔ چینی کے حصول کے لیے شہریوں کو قطاروں میں لگا دیا گیا اور اب حکومت کی ناقص حکمت عملی کے باعث کریانہ فروش بھی چینی کے حصول کے لیے قطاروں میں لگ گئے۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں چینی کی قلت کا بدترین بحران برقرار ہے۔ شہر میں چینی کا بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ صارفین تو ایک طرف، دکاندار بھی چینی کے حصول کے لیے لائنوں میں لگ گئے۔ اکبری منڈی میں چینی کا ایک ٹرک آیا تو دکانداروں میں بھی تقاضا شروع ہو گئی۔ محدود سپلائی کے باعث گڑھی شاہو، علامہ اقبال روڈ، قلعہ گوجر سنگھ، گلبرگ، گلشن راوی، یتیم خانہ چوک سمیت شمالی لاہور کے علاقوں میں دکانوں پر چینی دستیاب ہی نہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ٹرکوں کے پیچھے لگنے کے باوجود مطلوبہ مقدار میں چینی نہیں مل رہی۔ چینی ہے ہی نہیں بالکل، انہوں نے 85 ریٹ دے دیا ہے، کوئی دیتا ہی نہیں اس ریٹ پہ۔ مارکیٹ میں بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہاں لائنوں میں جا کے کون لے کے آئے۔ دوسری طرف شہری اوپن مارکیٹ میں مارے پھر رہے ہیں، لیکن چینی بدستور نایاب ہے۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ ذخیرہ اندوز ہیں، انہوں نے اپنے پاس سٹاک کی ہوئی ہے۔ یہ اس کو باہر نکالنے کی ذمہ داری میری ہے یا آپ کے؟ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا۔ شہری اور دکاندار دونوں انتظامیہ پر برہم ہیں، جن کی نااہلی کا خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں۔ کیمرمین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ رمضان بازاروں میں چینی کے لیے طویل قطاروں پر لاہور ہائی کورٹ برہم۔ 15 روپے کے لیے عوام کو بھکاری بنا دیا ہے، جسٹس شاہد جمیل کے ریمارکس۔ سرکاری وکیل حلف نامہ جمع کروائیں کہ لائنیں نہیں لگیں گی۔ عدالت نے چینی کے لیے لائنیں ختم کرنے کا حکم دیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ حکومت نے ہمیں جو کہا ہم نے چینی کی وہی قیمت مقرر کروا دی، پھر چینی کے لیے لائنیں کیوں لگوائی جا رہی ہیں؟ سرکاری وکیل سے پوچھا کیا اوپن مارکیٹ میں چینی 85 روپے فی کلو مل رہی ہے؟ سرکاری وکیل نے بتایا کہ عام دکانوں پر 85 روپے اور رمضان بازاروں میں 65 روپے فی کلو چینی فراہم کی جا رہی ہے۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے 15 روپے کے لیے لوگوں کو بھکاری بنا دیا۔ رمضان بازاروں میں چینی کے لیے لمبی لائنیں نہیں لگنی چاہیے، یہاں عدالت میں حلف نامہ جمع کروائیں کہ لائنیں نہیں لگیں گی۔ سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ لوگوں کو لائن میں نہیں کرسیوں پہ بٹھا کر چینی دی جا رہی ہے۔ رمضان بازاروں میں محدود جگہ اور سٹالز کی وجہ سے لائن لگ جاتی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اگر انسانی وقار متاثر کرنا ہے تو کسی کے گھر کے باہر سے چینی لینے دیں۔ عدالت نے کل تک رمضان بازاروں میں چینی کے لیے لائنیں ختم کرنے کا حکم دیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ عثمان الیاس، سٹی 42۔ حکومت اور کالعدم ٹی ایل پی کے درمیان مذاکرات کامیابی میں گورنر پنجاب چودھری سرور نے پل کا کردار ادا کیا۔ حکومت اور کالعدم ٹی پی ایل کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے لیے گورنر پنجاب چودھری سرور نے اہم کردار ادا کیا۔ ذرائع کے مطابق کالعدم ٹی ایل پی کی جانب سے پنجاب حکومت کے کسی بھی نمائندے کے ساتھ بات چیت سے انکار کیا گیا تھا، جس کے بعد مذاکرات کے لیے ٹی ایل پی کو راضی کرنے کا قرعہ گورنر پنجاب کے نام نکلا۔ پیر کے روز مذاکراتی عمل کا باقاعدہ آغاز چودھری سرور نے ہی کروایا۔ مذاکرات کے پہلے دور میں گورنر پنجاب نے کئی گھنٹوں کی تگ و دو کے بعد پولیس افسران اور اہلکاروں کی بازیابی کروائی۔ دوسرے مرحلے میں مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر معاملات حل کرنے کے لیے راضی کیا اور انہیں باور کروایا کہ معاملات مذاکرات کی میز پر ہی حل ہوں گے۔ منگل کے روز مذاکراتی عمل کے 3 دور کیے۔ تینوں ادوار میں گورنر جارحانہ رویے کو سیاسی تدبر سے ٹھنڈا کرتے رہے۔ ذرائع کے مطابق فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے نقطے پر ڈیڈ لاک ختم کروانے کے لیے بھی گورنر نے ہی کردار ادا کیا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے لاہور سمیت ہائی کورونا کیسز والے 8 اضلاع میں کالجز اور یونیورسٹیز اگلے احکامات تک بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تمام انٹرنیشنل امتحانات پہلے سے جاری شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ او لیول کے امتحانات 10 مئی سے لیے جائیں گے۔ بورڈ امتحانات کے پیش نظر 9ویں اور 10ویں کلاسز اور کالجز میں صرف انٹرمیڈیٹ کی کلاسز لینے کی اجازت ہوگی۔ تمام کالجز میں سوائے انٹرمیڈیٹ کے باقی ہر قسم کی کلاسز اور سرگرمیوں پر پابندی رہے گی۔ تمام انٹرنیشنل امتحانات پہلے سے جاری شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ ایس ایس سی اور ایچ ایس ایس سی کے امتحانات پنجاب بھر میں پی بی سی سی کے ریوائزڈ شیڈیول کے مطابق لیے جائیں۔ پنجاب حکومت کا انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کی بحالی کا فیصلہ۔ میٹرو بس سروس اور سپیڈو بسیں کل سے چلا دی جائیں گی۔ محکمہ صحت نے کرونا ایس او پیز کے تحت انٹر سٹی ٹرانسپورٹ چلانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
शहर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस मेट्रो बस सर्विस, मैस ट्रांजिट सर्विस और स्पीडो बस को 29 मार्च को बंद कर दिया गया था। पंजाब हुकूमत के महकमा सेहत ने इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेट्रो बस सर्विस और स्पीडो बस आज से शेड्यूल के मुताबिक चलेंगी। ज़राए के मुताबिक ऑरेंज लाइन को कल ऑपरेशनल नहीं किया जाएगा। ऑरेंज लाइन के यतीम खाना स्टेशन की बहाली के बाद ट्रेन ऑपरेशन चला दी जाएगी। माह रमज़ान के पहले अशरे में अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। खूबसूरत मौसम ने शहरियों को मसरूर कर दिया है। रमज़ान मुबारक का रहमतों भरा अशरा अख्ताम की जानिब गामजन है। पहले अशरे के दौरान मौसम खुशगवार रहा। शहर में होने वाली बारिश के बाद ठंडी हवाएं चल रही हैं। शहरियों का कहना है कि सुहाना मौसम भी अल्लाह की रहमत है। ठंडी हवा अभी भी आप देख रहे हैं, मेरे हवा चल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक्स्ट जो आने वाले जो सेकंड और थर्ड अशरा है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसी तरह गुजरेगा। बड़ा खूबसूरत मौसम है और ये रमज़ान उल मुबारक की बरकतें, और मेरा ख्याल है अल्लाह पाक हम पे ये रहमतें इसी तरह नज़ूल चलता रहे। खवातीन का कहना है कि 7 रोजे गुजर गए, एक दिन भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ और ना ही इफ्तारी बनाने में दुश्वारी हुई। इस मौसम पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। मौसम तो पहले भी ठीक था, कोई खास पहले की तरह प्यास वगैरह नहीं लग रही, इतनी गर्मी की शिद्दत तो नहीं है, लेकिन जब ऐसा मौसम हो जाता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। आजकल मौसम इतना अच्छा अल्लाह ताला ने कर दिया है, इतना वेदर जो है वो बहुत अच्छा ठंडा कर दिया है कि हमें बिल्कुल भी वो गर्मी की वो तपश, वो सूरज की तपश, वो गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। शहरियों ने उम्मीद का इजहार किया है कि रमज़ान मुबारक के बाकी दोशरों में भी मौसम खुशगवार रहेगा। शहर लाहौर के मौसम की, शहर में तेज हवा के साथ बारिश, मस्त हवाओं से मौसम हसीन हो गया है और रोजेदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइएगा मौसम कैसा है, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया गया है? आज बिल्कुल लाहौर का मौसम आज खुशगवार हो चुका है और वक्फे से लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। कहीं बूंदाबांदी है तो कहीं तेज़ हवाएं चल रही हैं तो कहीं तेज़ बारिश भी हो रही है। इस वक्त हम मुस्लिम टाउन के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर भी वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवाएं 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम खुशगवार होने की वजह से लाहौरियों के चेहरे भी खिला उठे हैं और चूँकि सहरी का वक्त करीब है तो इसकी वजह से भी जो लाहौरियों की सहरी है वो भी खुशगवार हो जाएगी। और इसके साथ साथ महकमे मौसमियात का कहना है कि मौसम का ये सिलसिला, जो हवाओं का ये सिलसिला है, आइंदा 2 रोज़ तक ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अली रजा, हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। सिटी 42 ने मसला उठाया तो महकमा ट्रांसपोर्ट को भी होश आ गया। 7 करोड़ 70 लाख की लागत से खस्ता हाल बस स्टॉप्स की मुरम्मत के बाद अब शहर में 200 नए बस स्टॉप बनाने का फैसला कर लिया। नए माली साल में 48 करोड़ 90 लाख के फंड्स मुख्तस करने की सिफारिशात कर दी गई हैं। महकमे ट्रांसपोर्ट ने स्कीम को नए माली साल में शामिल करके फंड्स मुख्तस करने की सिफारिशात हुकूमत को भिजवाती हैं। रवा माली साल भी खस्ता हाल बस स्टॉप्स की मुरम्मत और बहाली के लिए कबीना कमेटी बराए खजाना ने 7 करोड़ 70 लाख के सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी थी। शहर में खस्ता हाल बस स्टॉप्स मुसाफिरों के लिए परेशानी का बायस है। किसी बस स्टॉप की छत मौजूद नहीं तो किसी पर बैठने की जगह नहीं, कहीं सिरे से बस स्टॉप ही मौजूद नहीं। बात करेंगे लाल शहबाज कलंदर अंडरपास में निकासी आब के लिए पंप्स लगाने के मामले पर। वासा की बार बार मामला उठाने की कोशिशें रंग ले आईं। LDA 4 माह की ताखीर से रमा हफ्ते काम मुकम्मल करेगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियरिंग विंग की जानिब से रवां हफ्ते 4 क्यूसेक की इस्तेदाद वाले 4 सबमर्सिबल पंप्स नस्ब करा दिए जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल में निकासी आप के लिए कोई मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं है। LDA 4 माह तक पंप्स की तनसीब के लिए कन्फ्यूजन का शिकार रहा। वासा की जानिब से तजवीज़ करदा वर्टिकल पंप्स लगाए जाएं या सबमर्सिबल 4 माह तक फैसला ही ना किया गया। मौके पर पंप्स की तनसीब के लिए लाया गया सामान भी पड़ा खराब होने लगा है। LDA हुकाम के मुताबिक रवां हफ्ते में पंपों की तनसीब का काम शुरू कर दिया जाएगा, जबकि मुमकिन बारिशों के पेश नज़र मौके पर आरजी डिवाटरिंग सेट रखा गया है। वाज़ेह रहे कि नवंबर 2020 में लाल शहबाज कलंदर अंडरपास का इफ्तिताह हुआ था, जिसके बाद से निकासियाब के लिए पंप्स लगाना मुसलसल इल्तवा का शिकार रहा था। शहर में 100 स्कूलों की तामीर का पुराना मंसूबा फिर से बजट में शामिल। पंजाब हुकूमत नए बजट में तालीम के पुराने मंसूबों को ही तरजीह देगी। नए माली साल में 50 अरब रुपए का बजट तालीमी मंसूबों के तरक्याती कामों पर खर्च होगा।
नए माली साल के बजट की तैयारियां जारी हैं। मौजूदा हुकूमत चौथा बजट जून में पेश करेगी। तरक्याती बजट के हवाले से मुख्तलिफ सूबाई इदारे अपने मनसूबों के ड्राफ्ट भेज चुके हैं। तालीमी इदारों के हवाले से 4 सूबाई महकमों ने 50 अरब रुपए तक मजमूई तरक्याती बजट मुख्तस करने की तजवीज़ दी है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के लिए 17 अरब रुपए के फंड्स नए प्रोग्राम के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ है। महकमे स्कूल एजुकेशन के लिए 32 अरब और हायर एजुकेशन के लिए 10 अरब 45 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। स्पेशल एजुकेशन के लिए 1 अरब और लिटरेसी डिपार्टमेंट के लिए 3 अरब 95 करोड़ रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। शहर के सरकारी स्कूलों में 40,000 तालिब इल्मों का इजाफा, नए तलबा को पढ़ाने के लिए असातिज़ा की कमी, हज़ारों असामियाँ खाली पड़ी हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में 3 साल के दौरान एक भी टीचर भर्ती न किया जा सका। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नई दाखिला मुहिम 2021 के तहत लाहौर के सरकारी स्कूल्स में कोरोना के बावजूद 40,000 नए तलबा दाखिल हुए हैं। तलबा की तादाद बढ़ने से सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा की शदीद कमी का सामना है। मौजूदा हुकूमत ने 3 सालों में असातिज़ा की भर्तियां नहीं की। स्कूल्स में असातिज़ा की 70,000 आसामियां पहले ही खाली पड़ी हैं। असातिज़ा की कमी के बाद सरकारी स्कूल्स का मयार तालीम शदीद मुतासर होने का खदशा है। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स में तलबा के नए दाखिलों की तादाद में 4.5 लाख का इजाफा हुआ है। ऑल टीचर्स एसोसिएशन के नायब सदर आसिफ गोहर ने कहा कि ज्यादा तादाद वाले स्कूल में SNE के तहत नई पोस्टें तख्लीक की जाएं। भर्ती नहीं करनी तो खाली सीटों को जरूरत के तहत दीगर स्कूल्स में शिफ्ट किया जाए। जालसाज माफिया रमजान में भी बाज न आया। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में जाली शहद तैयार करने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 6 यूनिट सील कर दिए गए। 5,000 किलो जाली शहद तल्फ कर दिया गया। फैक्ट्रियों से 2,000 किलो ग्लूकोज, 500 किलो चीनी, 10 बर्नर्स और 8 सिलेंडर्स बरामद करके कब्जे में लिए गए थे। DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना था कि जाली यूनिट बादामी बाग और रेलवे स्टेशन के इलाकों में काम कर रहे थे। ग्लूकोज, चीनी, खुले रंगों से जाली शहद तैयार किया जा रहा था। सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात और खुले एरियाज में शहद तैयार किया जा रहा था। पंजाब फूड अथॉरिटी लाइसेंस और वर्कर्स के मेडिकल भी नहीं थे। जाली शहद का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र साबित होता है। आवाम से गुजारिश है कि अशिया की खरीदारी से कबल लेबल पर दर्ज हिदायत लाजमी पढ़ा करें। और अब बात मनी लॉन्ड्रिंग केस की। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत 21 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच मियां शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर 10:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस अली बाक़िर नजफी की सरबराही में जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी फुल बेंच मियां शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगा। मियां शहबाज शरीफ की जानिब से आजम नजीर तारड़ एडवोकेट, नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल बुखारी पेश होंगे। इससे कबल 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने मियां शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर, जबकि जस्टिस असद जावेद घराल ने मुस्तरद की थी। बेंच के 2 जजेस के शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत के मुतालिक इख्तिलाफ पर मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील देने की मंजूरी दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात करें तो लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। हाई कोर्ट का नए प्रोसिक्यूटर को जवाब की कॉपी बेंच के दूसरे रुकन के लिए जमा करवाने का हुक्म। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की तरफ से बैरिस्टर हैदर रसूल मिर्जा, जबकि नैब की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल रजा बुखारी पेश हुए। 2 रुकनी बेंच की सरबराह जस्टिस आलिया नीलम ने ख्वाजा आसिफ के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपने जवाब देख लिया। बैरिस्टर हैदर रसूल मिर्जा ने जवाब दिया कि जवाब देख लिया है। जस्टिस आलिया नीलम ने वकील से मुकालबा करते हुए कहा कि आपने तो जवाब देख लिया है, मगर बेंच के दूसरे जज की फाइल में नैब का जवाब मौजूद नहीं। जस्टिस आलिया नीलम ने नैब वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपने जवाब की 2 कापियां दाखिल नहीं की थी। जस्टिस फारूक हैदर की फाइल में नैब का जवाब मौजूद नहीं है। उन्होंने नैब वकील को हिदायत की कि आइंदा समाअत पर जवाब की नकल बेंच के दूसरे रुकन के लिए भी जमा करवाएं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत में चेयरमैन नैब, DG नैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। बिजली चोरों को सजा देने की बजाय इस्लाह की जाएगी। सेशन अदालतों ने 1300 बिजली चोरों को इस्लाह के लिए खुसूसी मरकज भिजवा दिया। सेशन कोर्ट में बिजली चोरी के मुकदमात की समाअत के लिए 6 अदालतें कायम हैं। मार्च में 1300 मुल्जमान के केसेस पेश किए गए। सेशन अदालतों ने मुल्जमान को सजा देने की बजाय इनकी इस्लाह पर जोर दिया। इस मकसद के लिए प्रोबेशन ऑफिसर मुकर्रर किया गया, जो बिजली चोरी में मुलव्वस इन अफराद को माशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की खातिर ख्वाह नताइज भी सामने आए हैं। अंदर से नहीं करेंगे और इंशाल्लाह आगे से दूसरों को भी तहकीक करेंगे कि ये
ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। मुलजमान की इसलाह के लिए बाकायदा क्लासेस का आगाज हो गया है। पहले रोज 15 मुलजमान को प्रोबेशन ऑफिसर गुलाम सरवर ने लेक्चर दिया। इसलाह का काम जारी है। इन लोगों को एक मौका दिया है अदालत ने, इन पर ट्रस्ट पोज किया है, एक अच्छा शहरी बना सकें। वकला की जानब से मामूली नोयत के जराइम में मुलव्वस अफराद की इसलाह के इक़दामात को सराहा गया है। अदालतों की तरफ से मुलजमान को जेल भिजवाने की बजाय उनको इसलाह के लिए प्रोबेशन के पास भिजवाना एक अच्छा इकदाम है, ताकि वो माशरे में अपना मकाम बना सके। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। कि LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के लिए दरख्वास्तें जमा कराने के लिए अफराद के लिए खुशखबरी है। ऐवान वज़ीर आला में 2000 अपार्टमेंट्स की अलॉटमेंट के लिए दरख्वास्तों की कुरानदाजी की तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट स्कीम का मेयार किसी भी अच्छी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम से बेहतर होगा। ईमान वज़ीर आला में स्कीम के लिए मौसूल होने वाली 13,277 दरख्वास्तों की कुरानदाजी का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कुरानदाजी की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कंप्यूटर का बटन दबाकर LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की कुरानदाजी की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि अल्लाह ताला के फजलो करम से अवाम के लिए अपने घर का ख्वाब हकीकत का रूप धार रहा है। लाहौर में पहले मरहले में सूबाई वफाकी और LDA मुलाजमीन को 2000 अपार्टमेंट्स अलॉट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 13,000 से ज्यादा दरख्वास्तों का वसूल होना अवाम का इस मंसूबे पर भरपूर एतमाद का इजहार है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का ये मंसूबा फाइनेंशियल मॉडल की तर्ज पर शुरू किया गया है। मुख्तसर मुद्दत में अपार्टमेंट तैयार करके अलॉटी के हवाले कर दिए जाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जिनाह अस्पताल आमद, जख्मी पुलिस एहलकारों और कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की अयादत की। चौधरी मोहम्मद सरवर ने इंतजामी मामलात बेहतर अंदाज से चलाने पर MS डॉक्टर याहिया सुल्तान की भी तारीफ की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर दोपहर के वक्त जिनाह अस्पताल पहुंचे और सानिहा यतीम खाना में जख्मी कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की अयादत की। इस मौका पर MS जिनाह अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान समेत डॉक्टर्स भी मौजूद थे। चौधरी मोहम्मद सरवर MS जिनाह अस्पताल की कारकर्दगी से खुश दिखाई दिए। इंतजामी मामलात बेहतर अंदाज से चलाने पर डॉक्टर याहिया सुल्तान की तारीफ की। गवर्नर पंजाब ने जिनाह अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की भी अयादत की। जिनाह अस्पताल में कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 12 कारकुन और 5 पुलिस एहलकार ज़ेर इलाज हैं। CCPO ऑफिस में जख्मी एहलकारों को माली इमदाद के चेक देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। गुलाम महमूद डोगर ने 103 जख्मी एहलकारों में चेक तकसीम किए। चेक तकसीम करने की तकरीब में SSP एडमिन लाहौर वकार शोएब कुरैशी भी मौजूद थे। जख्मी कांस्टेबल इसरार अहमद और कांस्टेबल इदरीस अहमद को 1-1 लाख मालियत के इमदादी चेक दिए गए। इंस्पेक्टर इमरान महबूब, इंस्पेक्टर आसिफ अता, इंस्पेक्टर तौकीर अंजुम, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद नईम, तनवीर, जावेद अख्तर समेत मजमूई तौर पर 103 जख्मियों में चेक तकसीम किए गए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का रिंग रोड अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। रिंग रोड की डेवलपमेंट, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम बारे अहम फैसले किए गए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जेर सदारत इजलास में अथॉरिटी के तमाम अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि लाहौर रिंग रोड के एतराफ 1 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। लाहौर रिंग रोड के एतराफ में कमर्शियल एरियाज और कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी की नमाज जनाजा बेदिया एलीट ट्रेनिंग स्कूल में अदा कर दी गई। पुलिस सर्विस के बहादुर ऑफिसर साबिक IG KP के नासिर दुरानी पीर के रोज कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा लीड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर अदा की गई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के खसूसी दस्ते ने DIG हेडक्वार्टर राय बाबर की सरबराही में सलामी पेश की। नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, IG पंजाब इनाम गनी, IG रेलवे आरिफ नवाज, साबिक IG शेब दस्तगीर, CCPO गुलाम महमूद डोगर, DIG वकास नजीर, एडिशनल IG फारूक मजहर ने शिरकत की। DIG आगा यूसुफ, SSP सुहेब अशरफ, DIG रियाज नजीर, एडिशनल IG रिटायर्ड अजहर हमीद, एडिशनल IG रिटायर्ड सरमद सईद नमाज जनाजा में शरीक हुए। SP राशिद, SP सैयद अब्बास शाह, DIG सलमान सुल्तान राना, साबिक CCPO उमर शेख, साबिक SP CIA उमर विक, SSP नजीबुर रहमान, एडिशनल IG रिटायर्ड
ریٹائرڈ اعظم جویا, DIG ریٹائرڈ ڈاکٹر مسعود نے نماز جنازہ میں شرکت کی. سیکریٹری ریٹائرڈ انور رشید, SSP غازی صلاح الدین, SSP خرم جامبار, SP احسن یوسف, DIG طارق عباس قریشی, ایڈیشنل IG ریٹائرڈ عارف مشتاق, DIG کامران خان, ایڈیشنل IG راؤ سردار, ایڈیشنل IG وسیم سیال, ایڈیشنل IG شاہد حنیف, RPO شیخو پورہ انعام وحید, DIG آپریشنز پنجاب سہیل سکھرا نماز جنازہ میں شریک ہوئے. ناصر درانی نے اکتوبر 1982 میں بطور ASP پولیس سروس جوائن کی. بطور IG خیبر پختونخوا پولیس میں اصلاحات لانے پر وزیر اعظم عمران خان نے متعدد بار ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا. پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ٹریول ایجنٹس کے لیے ویبینار, رجسٹریشن اور گوشوارے جمع کرانے سے متعلق مکمل معاونت کی یقین دہانی کرائی. PRA کے ویبینار میں انفورسمنٹ آفیسر عمر فاروق اور محمد کامران نے ٹریول ایجنٹس کے مسائل سنے. ویبینار میں چیئرمین ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان طارق سراج, محمد انیس اقبال سمیت دیگر عہدیداروں نے آن لائن شرکت کی. عمر فاروق نے کہا, پنجاب میں ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن کے 700 رجسٹر ممبران ہیں. ٹیکس نیٹ میں لاہور کے 450 ٹریول ایجنٹس رجسٹر ہیں. کرونا صورتحال کے پیش نظر ٹریول ایجنٹس کے لیے سیلز ٹیکس کی شرح 16% سے کم کر کے 5% کر دی گئی. ٹریول ایجنٹس کو رجسٹریشن اور فائلنگ میں درپیش مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن معاونت کریں گے. افسران نے عہدیداران سے اپیل کی کہ وہ غیر رجسٹر ممبران کو رجسٹر کروانے کے لیے کردار ادا کریں. ہم ان کا ایک باقاعدہ سیشن ارینج کریں گے جس میں کہ ہم ان کو ریٹرن فائل کرنے کا طریقہ سکھائیں گے. میرے ساتھی محمد کامران صاحب ہیں, انفورسمنٹ آفیسر. ہم دونوں نے آج جو ویبینار کیا ہے اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہی تھا کہ ہم لوگ ان کے کنسرن سنیں اور ان کی ریزولوشن کی طرف جائیں. ٹی وی پر دوبارہ ڈرامہ نشر کرنے پر رائلٹی دی جائے, فنکاروں کا مطالبہ زور پکڑ گیا. سوشل میڈیا پر باقاعدہ مہم شروع کر دی. شوبی ستاروں نے ٹی وی پر دوبارہ دکھائے جانے والے ڈراموں کی رائلٹی دینے کا مطالبہ کیا ہے. سب سے پہلے کینسر سے نبرد آزما اداکارہ نائلہ جعفری نے یہ معاملہ اٹھایا. آخری دنوں میں جو میں نے اپنا لاسٹ سیریل کی تھی وہ بھی کچھ 6 دفعہ, تب سے 6 سال میں اب تک آن ایئر آ چکی ہے. 6 نہیں تو 4 دفعہ تو آ چکی ہے, اور بہت سارے پلیز ری رن ہو رہے ہیں. اگر ان کا کچھ اماؤنٹ جو ری رن کا ہوتا تھا ملنا چاہیے تھا, ملتا رہتا تو مجھ جیسے لوگوں کو اور سہولت اور آسانی ہو سکتی تھی. نائلہ جعفری کی حمایت میں شوبی ستارے میدان میں آ گئے. فلم ٹی وی کے نامور فنکاروں نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آواز بلند کی. ایک ٹائم آتا ہے جب وہ اس طرح سے نہ کام کر سکتا ہے نہ اس کو اس طرح سے کام ملتا ہے, تو اوبیسلی وہاں پہ جو آپ نے ساری زندگی کام کیا ہوا ہوتا ہے اس سے آپ کو بینیفٹ ملتا ہے. کتنے ہیں جو آئے اور گئے اور پتہ بھی نہیں ہمیں چلا. ان سب کا حل ہے, ان سب کا حل ایک حل ہے, وہ ہے رائلٹیز اور ریزیڈوئلز. تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ہم انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور اپنے آرٹسٹ کو رسپیکٹ دیں, ان کا ڈیو دیں. ہم آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے, بخدا ہم اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں. حکومتی ایوانوں تک بات پہنچی تو سینیٹر فیصل جاوید نے معاملے کے حل کے لیے پارلیمنٹ میں جامع بل لانے کی یقین دہانی کروائی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.